Hello dear students, welcome to Experience Educator. If you are new to this channel, please do subscribe and press the bell icon for all upcoming notifications. So in this video, we will discuss a shocking fact. It has been mentioned in this year's IBPS PO notification. जो पहले पिछले ईयर का IBPS PO notification था उसमें ये नहीं था मेंशन किया. अभी IBPS ने मेंशन कर दिया है कैसे डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है वो कैसे चेक होगा वो क्लियरली मेंशन कर दिया है. ओके, सो इट विल हेल्प to enhance your marks in the descriptive part, right? So you can read the daily current affairs from our app. Just download the Exigence Educator app from the Google Play Store. App में आपको daily in detailed current affairs मिलेगा, right? You can attempt the free quiz, free monthly current affairs quiz. There are doubts and queries for many students, so you can just post your doubts in the discussion forum. Okay, your doubts will be addressed. Okay, your queries will be answered. And if you want to purchase a 1-year subscription of mock tests, it is available for rupees 199. It is available for rupees 199 if you use the code UTSAV. Okay, just use the code UTSAV. Okay, the price will be rupees 199. You will get mocks for SBI, IBPS, RBI, SSC, railways, everything, right? 1-year subscription, right? सो लेट अस जस्ट डायरेक्टली गो टू द नोटिफिकेशन. देखिए प्रीलिम्स का तो ऑलरेडी मेंशन हुआ है. देखिए यहाँ पे बताया गया है 30, 35, 35, ये सभी जानते हैं, राइट? टाइम अलॉटेड 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, ये सभी को पता है. प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न और मेंस का एग्जाम पैटर्न. मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 रीजनिंग और कंप्यूटर में, मार्क्स 60. और ये जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर में से कुछ नहीं पूछता है, ये रीजनिंग में ही सब क्वेश्चंस डाल देते हैं. ओके, सो रीजनिंग अच्छे से करना है. जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों आपको आना चाहिए. 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, राइट? टाइम भी यहाँ पे अलॉटेड दिखा रहा है. इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स. देन इन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दैट इज DI, 35 क्वेश्चन, 60 marks and 45 minutes. Now let us just move on to English language, that is English descriptive paper. अभी इसी में क्या IPS ने मेंशन किया है ये देखिए. See, you will have one essay, one letter. Like you will have to choose from 3 to 3 essay topics. Okay, and 2 to 3 letter topics. You will have options, right? 1, 2, 3. You will have to mention the question number and मेंशन योर आंसर. ओके, एंड राइट डाउन द एसे और लेटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बहुत ज़रूरी है मेंशन करना. और मार्क्स कैसे रहेगा? मार्क्स डिवीजन इट विल बी 15 + 10. सो मार्क्स डिवीजन विल बी 15 + 10, दैट इज 25. ओके, सो 30 minutes विल गेट, एंड योर टाइपिंग स्पीड शुड बी गुड फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट बिकॉज यू हैव टू टाइप इट. Now this is the surprising element, this is the shocking part which has been mentioned in this year's IBPS PO notification. देखिए ये मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया. देखिए, descriptive paper of English language, letter writing and essay may be evaluated by an automated scoring mechanism. What is this? What is this automated scoring mechanism? बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ में भी जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्राइवेट कंपनीज़ में जो रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम होता है, नॉट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, जो रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी ये मैकेनिज्म फॉलो करते हैं. मतलब दिस इज़ बेसिकली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड. ओके, सो दे विल चेक फॉर योर ग्रामर, दे विल चेक फॉर द कीवर्ड्स. ओके, नाउ लेट मी जस्ट रीड इट थॉरली. By an automated scoring mechanism for identifying features related to writing proficiency. This scoring mechanism is duly validated and evaluates test takers' proficiency in writing English language, in an objective manner, as the mechanism does not have any inbuilt biases for evaluating responses. मतलब if you use high flown language or if you use simple language, it doesn't matter. अगर आप बहुत अच्छे वोकैब यूज़ करते हैं, इट डजेंट मैटर. व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज़ द ग्रामर. मैं हमेशा बार बार रिपीट करता हूँ कि ग्रामर आपको अच्छे से आना चाहिए. ओके, इंग्लिश ग्रामर. सी, प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज मतलब
ग्रामर में, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड ग्रामर। ओके, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड ग्रामर आपका सही होना चाहिए, नहीं तो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। ओके, सो दिस विल बी बेसिकली चेक्ड बाय सॉफ्टवेयर, और यू कैन से ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म, और यू कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, बेस्ड ऑन AI, राइट। सो इट विल नॉट बी चेक्ड बाय एनी पर्सन और एनी इंडिविजुअल। ओके, सो ये ध्यान में रखिए, आपका ग्रामर या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही होना चाहिए। दिस वाज नॉट मेंशन्ड इन लास्ट ईयर्स IPS PO नोटिफिकेशन। 2020 का नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, उसमें ये मेंशन नहीं था। ओके, बट इस साल IPS ने क्लियरली मेंशन किया है, वॉट एवर एग्जाम्स IPS कंडक्ट्स, दे विल फॉलो दिस मैकेनिज्म, दे विल फॉलो दिस ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, मीन्स अच्छा होना चाहिए मतलब क्या है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, वर्ब मिसिंग नहीं होना चाहिए। ओके, जहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए वहाँ पे एडवर्ब नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये ध्यान में रखना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। किसी ने अभी ग्रुप में पूछा था वेदर द वर्ड कॉन्सर्न इज़ अ नाउन और वर्ब। ठीक है, सो my friend, the word concern can be used as a noun as well as a verb. ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड बिल्ड बेसिक what to say, basic platform, so that your grammar is basic foundation, so that your grammar is good. Okay, so if I say I am concerned about you, I am concerned, pardon my handwriting, I am concerned about you, means I am using the word concern as a verb. I am concerned about you. Okay, now if I say his concern about my well-being, about my well-being is obvious. So I am using the word concern as a noun here. Okay, he is concerned. So please you need to understand, प्लीज़ ग्रामर को अच्छे से कीजिए, बिकॉज बेसिक ग्रामर इज़ वेरी यूज़फुल एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब आई ऑफन सी पीपल राइटिंग डिस्क्रिप्टिव, जब मैं कॉपी चेक करता था स्टूडेंट्स का, ओके, आई यूज़ टू सी लास्ट ईयर आई यूज़ टू सी दैट मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग सेंटेंसेस वेयर वर्ब इज़ मिसिंग। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे एडवर्ब होना चाहिए वहाँ पे एडजेक्टिव है, जहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए वहाँ पे आर्टिकल नहीं है, जहाँ पे आर्टिकल नहीं होना चाहिए, दा नहीं होना चाहिए, दे आर यूजिंग द। ओके, सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स बिकॉज इट विल बी चेक्ड, द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी चेक्ड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, software will be checking your descriptive paper, it will check your sentence construction, basic proficiency in writing English language. Okay, I hope it is clear now. For any doubt or query, please comment section में मुझे बताइए क्या आपका doubt या query है, I will try to address those doubts. Okay, take care, God bless you all.